Hello students, welcome to our official channel of Goprep, YouTube official channel for grade 8. So how are you all doing students? How are you all? Yes, a very warm welcome to our platform. And students, as you all can see that today we are going to do the cell organelles. So it's going to be a part 1 for you all. So yes, काफ़ी कुछ है आज के इस सेशन में and let's just quickly get into the session that what all we have for you today. And yes students, थोड़ा सा हम पहले concept पढ़ेंगे and after that we are also going to have your your mentee quiz. Okay, so are you all excited? Yes, good evening everybody, good evening all of you. Alright students, so starting with our endomembrane system today. So जो भी आज organelles, cell organelles के बारे में आज हम बात करेंगे, those are going to be your endomembrane system. ठीक है, so endomembrane system क्या होता है? It's a network of membranous organelles. So बिल्कुल membrane से बने हुए organelles होते हैं, ये एक पूरा network होता है. And they are extending in the cytoplasm of the cell. पूरे cytoplasm में these are extending. Now what does it do? काम क्या होता है इसका? So students, they make modify proteins. ठीक है, they synthesize the proteins, they even modify the proteins. And उसके बाद synthesis और modification के बाद वहाँ पर क्या होता है? The sorting is done, the trafficking is done to the various parts, either inside the cell or it could be outside the cell also. So yes, that is all done. After that students, we are going to see that exactly यहाँ पे इस endomembrane system के अंदर कौन से cell organelles present होते हैं, which all cell organelles are present here. So yes students, these are your endoplasmic reticulum, that is your ER, and then we have the Golgi body or Golgi apparatus you can say. Then we have our lysosomes, then the final one is the vacuole. So yes, और यही सारे जो organelles होते हैं यही मिलकर बनाते हैं हमारा एक exactly पूरा endomembrane system. Fine students? Alright, so यहाँ तक अभी किसी को problem है? If you didn't understood anything, so do tell me. Okay, वैसे अभी हमने कुछ start ही नहीं किया, it's just the introduction about what are endomembrane system, right? Okay students, after that I'll be talking about the endoplasmic reticulum first of all. So what are endoplasmic reticulum? So can you see what this structure is? What is it? Any idea? Yes, quickly tell me what is it? Yes? Okay, tell me fine. Alright. So this is nucleus, right? The structure that you are seeing here, this blue colored structure is the nucleus, and this outer bluish color membrane, this is your nuclear membrane. Fine, so this is your nuclear membrane. And students, you can see इसी nuclear membrane में से कुछ बाहर की तरफ membranous structures निकल रहे हैं, ठीक है? These are the membrane like structures that are coming out, right? And from where are these coming out? From the outer layer of the nucleus, that is the nuclear membrane only. इसी nuclear membrane के बाहर ये जो structures हमें दिख रहे हैं बच्चे, these are nothing but your endoplasmic reticulum. ठीक है, इन्हें ही हम endoplasmic reticulum कहते हैं. And students, you can see here that इन्हीं endoplasmic reticulum के ऊपर present होते हैं these bead like structures. Can you see these small bead like structures? एकदम मोती जैसे structures यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. These are nothing but your ribosomes. ये क्या है बच्चे आपके? These bead structures are ribosomes. Fine, these are ribosomes, and these ribosomes help in the synthesis of proteins in the ER. So जो हम कहते हैं कि endoplasmic reticulum जो है protein की synthesis में help करता है, so that is basically your ribosomes only which are synthesizing the proteins there. Fine. So any doubt till here if you have? Okay, I cannot see anybody, any student who is commenting till now. So I think you all have understood till here. Fine, absolutely fine then. Okay, so बच्चे endoplasmic reticulum आप देखो, यहाँ पर दो तरीके के endoplasmic reticulum होते हैं.
So I'll just quickly show you that there is a part where these endoplasmic reticulum are having these beaded structures जहाँ पर ये ribosomes present हैं, and these are known as your RER, that is the rough endoplasmic reticulum, because these are giving a rough structure to the endoplasmic reticulum. But apart from that we have this particular portion, यहाँ पर हमें कोई भी राइबोसोम नहीं दिखाई दे रहा है. So these are the smooth endoplasmic reticulum where no ribosome is present. Fine. So yes, endoplasmic reticulum is a system of tubes and sacs which is continuous with your न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो ये एकदम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर होता है, इसे ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. देन इट मेक्स प्रोटीन्स. दीज मेक्स द प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ द राइबोसोम्स. Yes, they make the proteins with the help of these ribosomes, these beaded structures which are present here, and a bit of modification of the proteins is also done here. ठीक है. So it's not just that यहाँ पे synthesis होते हैं, उसके अलावा the modification of protein also happens here. Then we see there are two types of endoplasmic reticulum, that is your rough ER and smooth ER, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था. So rough ER में what I told that there the appearance is a bit rough, क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम्स होता है, तो जब हम माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं तो इट लुक्स अ बिट रफ देयर. ठीक है. बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे डू नॉट हैव राइबोसोम, सो देयर अपीयरेंस अ बिट स्मूथ अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है. सो यही डिफरेंस होता है, एंड द डिफरेंस इज दैट दे हैव द राइबोसोम्स, सो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक द प्रोटीन्स. बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स नहीं होता, तो वहाँ पर राइबोसोम्स का सिंथेसिस नहीं होता, बट उसके अलावा दे सिंथेसाइजेस द लिपिड्स, the steroids, and steroids are some of the hormones which are made up of lipids. Fine. And yes, they also detoxify the cell. So if any question comes that which organelle detoxifies the cell, detoxification का मतलब होता है कि सेल के अंदर कोई भी ऐसी पॉइजनस चीज़, कोई भी ऐसी टॉक्सिन भरी हुई चीज़, टॉक्सिन इज पॉइजन, सो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि सेल के लिए पॉइजनस हो सकती है, उसको वो रिमूव कर देते हैं सेल में से. एंड यस, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो स्टोर सम ऑफ द कैल्शियम इन इट. ठीक है. और ये कैल्शियम का फ्यूचर में रोल होता है कि इट हेल्प्स इन द वर्किंग ऑफ योर मसल सेल्स. ठीक है. तो ये लोग आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे दैट हाउ इट हैपन्स. सो यस, यहाँ पर आप इतना समझ सकते हो कि दे स्टोर द कैल्शियम. सो काफ़ी सारे रोल्स हैं SCR के भी. फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स के बारे में ऐसी क्या खास बात है? राइबोसोम्स हैज़ 2 units. The upper one is known as the larger subunit, and why larger? Because it has a large size as compared to this one which is present below it, and it is known as small subunit. Fine. And if I talk about this strand, this blue color strand, so students, होता क्या है कि हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर, यू नो, आवर जेनेटिक मटेरियल इज DNA, राइट? एंड दिस DNA स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, it stores the information for the formation of proteins in our body. ठीक है. जितने भी हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रोटीन्स बनते हैं which have some different characteristics, which show some different characteristics in our body, all that information is stored in the DNA. And DNA से जो हमारा RNA बनता है, the RNA which is formed, that is with the help of your, एक प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. यू डोंट हैव टू गो इन द डिटेल, बट ऐसे यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ प्रोसेस जहाँ पर इंफॉर्मेशन पहले जो कि DNA में थी, अब उसको RNA के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. उसके बाद फाइनली वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं.
ठीक है। सो ये जो आरएनए से प्रोटीन्स बनने का स्टेप होता है उसी में राइबोसोम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो हियर दिस ब्लू स्ट्रैंड इज नथिंग बट दिस ब्लू स्ट्रैंड इज एन आरएनए। ये आपका बच्चे यहाँ पर आरएनए है, ठीक है। एंड इस आरएनए के ऊपर जो कोडिंग है वो डीएनए से आई है। सो डीएनए पे जो कोड था, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो आरएनए के पास आ गया। अब आरएनए से वो जाएगी प्रोटीन बनाने में काम आएगी। सो राइबोसोम व्हाट इट डज, ये पूरे स्ट्रैंड को देखते हुए जाता है, ठीक है। इट इज गोइंग टू रीड दिस स्ट्रैंड, ठीक है, जैसे एक टाइप का रीडिंग चल रहा है। सो जैसे जैसे ये इसको क्रॉस कर रहा है, द रीडिंग इज डन, रीड किया हुआ पार्ट पीछे जाता जा रहा है और जो भी इसने रीड किया वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गई एंड अकॉर्डिंगली इट इज़ ऑल्सो मेकिंग द प्रोटीन्स। सो ये जो स्मॉल स्मॉल सर्कल्स मैंने बनाए हैं, दीज आर नथिंग बट योर अमीनो एसिड्स। सो यहाँ पर जो कोडिंग होती है वो हर एक अमीनो एसिड की होती है एंड यू नो प्रोटीन्स का जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज अमीनो एसिड। सो ऑल दीज अमीनो एसिड्स आर गोइंग टू कंबाइन एंड एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर यहाँ से एक हमारे पास प्रोटीन बन जाएगा। सो यस, दिस इज हाउ द प्रोटीन इज मेड बाय द राइबोसोम। Fine, so you understood, and yes, the process of the formation of protein from the RNA is known as translation, ठीक है। DNA से RNA बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं एंड दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। ऑलराइट, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। सो यस, इट मेक्स द प्रोटीन्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि यूकैरियोट्स के अंदर क्या चीज़ स्पेशल होती है। सो अभी हमने जो बात की थी आपके राइबोसोम्स की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, सो यस, यूकैरियोट्स के अंदर आपके ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सो यू हैव लर्न दिस थिंग अर्लियर, राइट? जब मैंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस बताए थे तो देयर आई टोल्ड यू दैट यूकैरियोट्स हैव ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वेयर सम स्पेशल फंक्शंस आर हैपनिंग इनसाइड देम, राइट? So that is why we say that eukaryotes have the endoplasmic reticulum, but this endoplasmic reticulum is absent in what? It is absent in the prokaryotes. But if I talk about the ribosome students, so ribosomes are present in both your prokaryotes also and in eukaryotes also, ठीक है। ये दोनों में ही present होते हैं because these are not the membrane bound organelles. Fine. चलिए, so if I talk about the endoplasmic reticulum, so that is present in the like the cell, एंड उसके अलावा अगर मैं राइबोसोम्स की बात करूँ तो यूकैरियोट्स में राइबोसोम कहाँ देखने को मिलता है? दैट इज प्रेजेंट इन योर एंटायर साइटोप्लाज्म। इट इज ऑल्सो फाउंड ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही निकलते हुए आपका ER आता है, राइट? योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो येस, वी कैन फाइंड द योर राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो एंड ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो। सो इन तीनों जगहों पे हमें राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं इन यूकैरियोट्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्रोकैरियोट्स, सो देयर वी विल ओनली फाइंड इट इन द साइटोप्लाज्म। फाइन स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टिल हियर। ओके, वेरी नाइस। चलिए, ऑल राइट, सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द गोल्जी अपैरेटस। सो गोल्जी अपैरेटस के बारे में क्या चीज़ है दैट जो भी प्रोटीन्स, सो प्रोटीन्स आर फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय योर व्हाट? Proteins are synthesized by endoplasmic reticulum, ठीक है, अभी हमने यही पढ़ा है, by your ER. So once the ER, your endoplasmic reticulum makes these proteins, then they come to the next organelle, that is your Golgi apparatus, where the proteins are going to be modified. यहाँ पर proteins का modification होता है, साथ में उनकी कुछ sorting होती है ना। What is sorting? So अगर हमें किसी पैकेज को किसी के पास पहुँचाना है, मेरे पास बहुत सारे पैकेजेस हैं, so first I'll see ना, I'll sort them out कि अच्छा ये वाले पैकेजेस इस एरिया में जाने हैं, ये वाले पैकेजेस इस एरिया में जाने हैं, so that is sorting, ठीक है। उसके बाद फाइनली आई विल पैक द थिंग,
so that it can be transported to the required place. So similarly same thing यहाँ पर होती है, प्रोटीन्स मिलते हैं रॉ फॉर्म में, पहले उनका मॉडिफिकेशन किया जाता है, उनकी सॉर्टिंग की जाती है, एंड फाइनली दे आर पैक्ड सो दैट दे कैन बी ट्रांसफर्ड फर्दर टू द रिस्पेक्टिव प्लेसेस. Yes students, then if I talk about your Golgi apparatus, that how does it function? So you can see here proteins are modified within the Golgi apparatus. So this is how the proteins are modified here. यहीं पर प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन चल रही है. फाइन. एंड यहाँ से बच्चे आपके काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न. अभी मैं वन बाय वन बता रही हूँ, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अभी तक जो भी हमने सारी चीज़ें पढ़ी आप लोगों को क्लियर हो गई है ना? ठीक है. एनीबडी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दैट? यस. ओके देन, वेरी नाइस. ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग एनी डाउट का मुझे अभी तक कोई कमेंट नहीं आया. सो दैट मीन्स येस, एवरीथिंग इज रनिंग फाइन. All right students, so we are going to learn about the Golgi apparatus now, and also if you haven't liked the video yet, please do like the video, and जब session over हो जाएगा you have to, what you have to do, you have to subscribe the channel if you haven't yet, hit the bell icon, and yes, share the video to your friends so that they also learn that how you people are preparing for your examination. उनको भी तो पता चलना चाहिए that you are studying on Goprep. Okay, so yes students, after that what we are going to learn over here कि दो तीन फंक्शंस होते हैं गोल्जी अपैरेटस के, दैट दे हैव टू पैक द थिंग्स. ठीक है, अभी ये मॉडिफिकेशन हो गई. सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम वेसाइकल्स कहते हैं. सी इन्हीं वेसाइकल्स के अंदर आपके प्रोटीन्स हैं जो पैक होके दे आर गोइंग टू बी रिलीज्ड आउट ऑफ द सेल. राइट, सो दिस इज हाउ द प्रोटीन्स आर रिलीज आउट ऑफ द सेल, क्योंकि हो सकता है इन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट सेल के बाहर है. तो येस, ये सेल के बाहर जो है दे आर रिलीज आउट, एंड अ प्रोसेस इन विच द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स like they join with the plasma membrane of the cell. So यहाँ बच्चे क्या है, एंड में एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी और यहाँ पर जाकर वेसाइकल्स जो है उन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगे, और अटैच होने के बाद दे आर गोइंग टू ओपन टूवर्ड्स आउटसाइड सो दैट दे कैन रिलीज दीज प्रोटीन्स. और इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं. एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड साइटोसिस मीन्स सेल. सो यस, वी आर throwing the proteins outside of the cell. ठीक है, so that is why it is known as exocytosis. Then there are some other procedures happening. For example, बाहर से हमारे सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया है. ठीक है, you can see this is a blue colored bacteria. Can you see here? This is the blue colored bacteria which has entered inside the cell. So it is carried along with the vesicle. ये vesicle आपकी सेल मेम्ब्रेन कैरी करके हुए लेके आ रही है. ठीक है, so vesicles can be formed from any of the membrane, your plasma membrane also or the membranes of your Golgi apparatus also. ठीक है, सो ये यहाँ से वेसाइकल बन के आया जिसके अंदर बैक्टीरिया है. अभी बच्चे देखो, एक आपका जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम एक तरह का क्या होता है, दैट इज अ सेल ऑर्गेनल, दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन्स ऑफ द Golgi apparatus ओनली. ठीक है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, Golgi apparatus. ठीक है, ये पॉइंट यहीं पे नोट कर लो. What causes the formation of your lysosomes? That is Golgi apparatus. You can see this is the lysosome which has been formed here. अब लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को, बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम आते हैं या डाइजेशन में काम आते हैं. ठीक है, सो यस, ये लाइसोसोम इधर से आ रहा है एंड इधर से आपका बच्चे बैक्टीरिया आ रहा है, और जो बैक्टीरिया को लेके आ रहा है इसको हम, इस वेसाइकल को हम फेगोसोम कहते हैं. ठीक है, अभी देखो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये जो आपका फेगोसोम है और लाइसोसोम है ये दोनों क्या कर गए, ये कंबाइन कर गए. नाउ व्हाई दे कंबाइंड, बिकॉज लाइसोसोम के पास ऐसे एंजाइम है जिसकी वजह से इस फॉरेन बैक्टीरिया को हम किल कर सकते हैं. इसीलिए दोनों ने कहा कि चलो हम मिलके एक ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं एंड आई विल किल दिस बैक्टीरिया नाउ. ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म एंड नाउ दिस इज नोन एज फेगोलाइसोसोम. Now you understand what is phagolysosome? It is a combination of a phagosome which is carrying some foreign particles and lysosome which is carrying the digestive enzymes. Both are going to be combined. दोनों जो है एक साथ मिल जाएंगे
और फेगो लाइसोसोम बना देंगे, जिसकी वजह से आपका बैक्टीरिया जो है इट विल बी किल्ड इनसाइड इट। एंड यू कैन सी ये ब्लैक कलर के कुछ बस रेजिडुअल पार्ट बच गया, जिसको भी सेल के बाहर थ्रो कर दिया जाएगा, दैट अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एंड बच्चे जो ये फेगोसोम अंदर आया था सेल के, दैट वाज विद द हेल्प ऑफ योर प्रोसेस एंडोसाइटोसिस। सो जब कुछ भी सेल के अंदर आ रहा है दैट इज एंडोसाइटोसिस, एंड अगर कुछ सेल के बाहर जा रहा है दैट इज एक्सोसाइटोसिस। एंड मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, अगर सेल के अंदर कुछ लिक्विड एंटर करता है दैट इज ऑल्सो नोन एज योर सेल ड्रिंकिंग भी हम उसको कहते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। ठीक है, सारी चीजें समझ आ गई ना? ऑल राइट। एंड व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? फेगोसाइटोसिस में बच्चे आपका जो सेल है इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स, जहां पर भी डाइजेशन का काम हो रहा है दैट इज फेगोसाइटोसिस। ओके, स्पेलिंग यहाँ गलत होगी, साइटो भी आएगा यहाँ पे, CYTO। Let me just quickly write it again with a bright pen. ठीक है, so that is phagositosis. Phagositosis. ठीक है, okay, phago means digestion and cyto means cell. सारी चीजें समझ आ गई। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस and phagocytosis. You have understood all these three things. Endo means something is entering inside the cell, और जब liquid enter करता है सेल में that is pinocytosis. सेल के कुछ बाहर जाता है that is exocytosis. and जब सेल के अंदर किसी भी चीज का digestion होता है with the help of lysosome that is phagocytosis. Clear? Okay. We are moving on now. So yes, it helps in the synthesis of the membranes and lipids also. Okay, lysosomes का काम हम लोगों ने अभी पढ़ ही लिया है। कहाँ से आता है ये? First of all, it is produced from the Golgi body or the Golgi apparatus. It contains hydrolytic enzymes, and what does it do? It digests the molecules, waste and the food particles. ठीक है, and it also helps in the digestion and cleaning of the cell. So yes, food particles को digest करता है, साथ साथ अगर कुछ foreign चीज़ सेल के अंदर आ जाती है so it is going to digest that. So अगर foreign चीज़ को digest कर लेगा तो हमारा सेल ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा. So it helps in the digestion, it helps in the cleaning of the cell. And it also helps in the removal of the old organelles. पुराने जो भी बच्चे organelles हो जाते हैं हमारे सेल के अंदर which are not able to function properly, उनको ये immediately digest कर देते हैं again with the help of these hydrolytic enzymes only. And इसको हम suicidal bag भी कहते हैं. Why? So इसको बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत बारी आता है कि why we call lysosomes as the suicidal bag. So what happens students, आपके लाइसोसोम के अंदर जब भी कुछ ऐसे और मतलब चीज़ें एंटर करती हैं जो कि सेल के लिए हार्मफुल है, ठीक है, सो उस केस में बच्चे आपका सेल जो है इट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, या कुछ और भी रीज़न हो सकता है कि अगर आपका सेल जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है या सेल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, गड़बड़ी आ गई, नाउ दैट सेल इज क्रिएटिंग द टॉक्सिन्स इनसाइड द सेल. अब उस सेल के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज टर्निंग पॉइजनस देयर, सो that can be harmful for the body. That cell has to be removed from the body. So lysosome what it does, ये immediately burst out हो जाता है. It is going to burst and it will release all the hydrolytic enzymes in the cell. सारे hydrolytic enzymes को ये cell में release कर देगा and it is going to digest every organelle of the cell, all the cytoplasm, everything, cell membrane, सब कुछ, and finally ये खुद को भी digest कर लेता है. Yes, that is why it is known as the suicidal bag, because it itself engulfs the entire cell which is not functioning properly. So ये एक अच्छा प्रोसेस होता है जो बॉडी के अंदर चल रहा है, ठीक है, because it only engulf the cell when it is not functioning properly. Fine. Now if I talk about the digestion of the amoeba, यहाँ पर बच्चे देखो आपका जो food particle होता है it enters into your
cell right into your amoeba, and the process is known as again endocytosis because something is entering inside the cell. और जब ये यहाँ पर एंटर करता है तो यू कैन सी अ फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड. सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट. फूड वैक्यूल बच्चे जब ये बनता है धीरे धीरे ये फूड वैक्यूल अंदर की तरफ आ जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप में अब ये फूड वैक्यूल बॉडी के अंदर आ चुका है. नाउ दिस फूड वैक्यूल इज कैरिंग द फूड राइट, एंड अब इसका हमें क्या कराना है, डाइजेशन कराना है. डाइजेशन तो वैक्यूल नहीं कर सकता बिकॉज उसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम नहीं है, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है. हाउ इट इज गोइंग टू डू? तो अगेन व्हाट इट विल डू, इट विल कॉल द लाइसोसोम. प्लीज भाई मेरी हेल्प कर दो एंड लेट मी हेल्प मी इन डाइजेस्टिंग दिस. मैं बड़ी मेहनत से बाहर से लेके आया हूँ इस फूड को एंड प्लीज हेल्प मी टू डाइजेस्ट दिस नाउ. सो येस, लाइसोसोम एंड दिस फूड वैक्यूल दे बिकम गुड फ्रेंड. सो दे आर गोइंग टू लाइक डाइजेस्ट इट टुगेदर नाउ. और ये जो अब टुगेदर वाला जो स्ट्रक्चर बन चुका है इसको हम फेगोलाइसोसोम कहते हैं. एंड हियर यू कैन सी द बैक्टीरिया विल बी डाइजेस्टेड एंड येस द अनडाइजेस्टेड फूड विल बी रिलीज्ड आउट अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस. Yes, okay, very nice all of you. So I hope you all are understanding and यहाँ तक अभी सब कुछ क्लियर हो चुका है आप लोगों के सामने. फाइन. वैक्यूल्स के बच्चे अगर हम बात करें तो वैक्यूल्स जो होते हैं, जो अभी मैंने आपको फूड वैक्यूल दिखाया वो बस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है. एंड ये प्लांट सेल, एनिमल सेल में भी मिलता है. प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है. इनका काम क्या होता है, स्टोरेज का. दे आर गोइंग टू स्टोर फूड वेस्ट और द वाटर एज वेल. एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है इट हेल्प्स अमीबा कंट्रोल द वाटर कॉन्सेंट्रेशन बाय स्टोरिंग द वाटर इन इट एंड पंपिंग इट आउट. सो येस, इट इज ऑल्सो गोइंग टू स्टोर द वाटर. सो स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द अमीबा, अमीबा के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं apart from the food vacuole. And what this contractile vacuole does, it stores the water. ये पानी को स्टोर करके रखता है ताकि वहाँ पर ऑस्मोटिक जो बैलेंस है, ऑस्मोटिक आयनिक बैलेंस वी कैन से, ठीक है. ऑस्मोटिक छोड़ दो, बहुत ही हैवी टर्म हो जाती है. सो पानी के साथ साथ जो बॉडी के अंदर का आयनिक बैलेंस है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एज वेल. सो जितना भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होता है तो वो पानी के साथ साथ उसको भी एक्सक्रीट आउट कर देता है. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. एंड इफ आई टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इन द प्लांट सेल्स, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन सी दिस इज द वैक्यूल जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया है. एंड ये वैक्यूल जो प्लांट सेल्स में होता है न्यूक्लियस से भी बड़ा होता है, काफ़ी स्पेस लेता है. सो यू नो दैट प्लांट्स के अंदर पानी का इनटेक और आउटटेक चलता रहता है बिकॉज दे हैव टू ट्रांसपोर्ट द वाटर इन द एंटायर प्लांट, राइट. सो काफ़ी हद तक वहाँ पे वाटर जो है सेल्स में जाता है. सो जब सेल्स के अंदर वाटर जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वाटर जाने की वजह से यहाँ पर सेल वॉल्स के ऊपर कुछ प्रेशर क्रिएट होता है, राइट. सो दिस प्रेशर, इस प्रेशर को झेलने के लिए, टू बेयर दिस प्रेशर विच इज क्रिएटेड बाय द लाइक इनफ्लक्स ऑफ द वाटर, वाटर इज इनफ्लक्स, ठीक है. वाटर इसके अंदर जा रहा है. सो येस, द वैक्यूल इज गोइंग टू टेक अप ऑल द वाटर और अपने साइज को वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बढ़ा लेते हैं ताकि जो प्रेशर है वो वॉल्स पे ना लगे और सेल बर्स्ट ना करे. सो दैट इज वाई दिस वैक्यूल इज प्रेजेंट. एंड सिमिलरली जब पानी सेल के बाहर निकलता है उस टाइम भी आपका सेल एकदम श्रिंक हो जाता है. सो दैट टाइम ऑल्सो द वैक्यूल एंड द इंटायर साइटोप्लाज्म श्रिंक टुगेदर सो दैट द सेल वॉल मेंटेन्स इट्स शेप एंड सेल की शेप को, सेल के साइज को कोई प्रॉब्लम ना हो और सेल एज इट इज मेंटेन रहे. सो येस, दैट इज वाई इट इज देयर एंड इट हेल्प्स इन द functioning, it helps the cell when the water goes inside or outside of the cell in the plants, ठीक है. बैग्स हमने दो पढ़े थे, वैक्यूल्स एंड वेसाइकल्स. वेसाइकल्स कुछ नहीं होते, वेसाइकल्स आपके मेम्ब्रेन से निकलती हैं, छोटे छोटे स्मॉल सैक्स होते हैं, बट वैक्यूल्स थोड़े से कंपैरेटिवली बड़े होते हैं. वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन. एंड वेसाइकल सिर्फ आपके मटीरियल्स को कैरी करने में हेल्प करते हैं. येस, इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस, जो कि हमने अमीबा में देखा था अभी. यस बच्चे, ओके. सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर मेंटी. Are you all ready for mentee now? Yes. Are you all ready for mentee now?
सो आई होप यहाँ तक मैंने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ाई है आप लोगों को समझ आ गया, एंड इसी के ही बेसिस पे वी आर हैविंग द मेंटी क्वेश्चंस. सो यस, लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट द मेंटी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम नाउ. ओके, यस. So students, go to www.mentee.com and use this code 9261117 right now. jaldi se fatafat. Yes, start entering into the mentee quiz now students. Yes, without wasting much time, just quickly enter into the mentee now. It's time for mentee. Show some enthusiasm. Yes students. Okay, use the code 9261117 right now and enter into the mentee. If somebody is new here, so bache, mentee is a form of quiz that we have on Goprep, and what you have to do is just quickly go on to this site on your Google Chrome or whatever you are using. So type www.mentee.com and enter into the mentee session by using the code 9261117. Okay, so already a lot of students have added. Yes, a lot of students have already been added in the mentee. I can see them, all the beautiful icons. Alright students, so kar de start mentee? Okay, let's just quickly start the mentee now. ठीक है, काफ़ी wait कर लिया हम लोगों ने. And yes, all right, अभी बहुत सारे बच्चे एंटर हो रहे हैं. चलिए ठीक है, हम 1 मिनट और देख लेते हैं कि कौन कौन आ रहा है. Yes, so that किसी के क्वेश्चन मिस ना हो. Okay, many of the students are coming. Very nice all of you. Yes, all right. चलिए, fine. So we are starting with the mentee now, and yes, you all know now that you have to answer fast to get more points. The first question is here in front of you, and it says that endoplasmic reticulum largely acts as a producer of. Yes, endoplasmic reticulum largely acts as a producer of. Endoplasmic reticulum largely acts as a producer of carbohydrates, proteins, DNA, ribosomes. What is it? Yes. Quickly answer this one. We have just studied this one. So I hope ये किसी का question गलत ना हो. Okay. And we are only left with 20 seconds now. Alright students. Quickly answer this one. Fine. So just 10 seconds left now. And those who have just joined, 9261117 is the code students. Okay, and the time is up. And the right answer is proteins. And many of students have written carbohydrates, DNA, ribosomes. क्या बच्चे, अभी तो पढ़ाया था मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस योर प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स. ऑलराइट, चलिए, कोई नहीं, कुछ कंफ्यूजन हो गई होगी या शायद आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया होगा. ओके. What is pinocytosis? Okay, Pranavi. So बच्चे, pinocytosis is cell drinking when the liquid enter inside the cell. ठीक है, जब भी सेल के अंदर कोई लिक्विड आता है, ठीक है, then we call it as pinocytosis. Fine. All right. Which organelle packages the proteins? कौन सा organelle proteins को पैक करता है? Endoplasmic reticulum, ribosome, Golgi, vesicles originating from ER. What is it? Yes, all of you. All right, students. Very nice.
Okay. So yes, the right answer is Golgi. You answered, but it's saying not voted. How it can happen, बच्चे? You sure you answered? Okay, we'll check what happened. Fine. आप आगे के questions attempt करो तब तक. Yes, बच्चे, I saw your comment. Let's see what happened. ठीक है, अभी आप आगे के questions check करो. ठीक है. Okay, so the right answer is Golgi. Packaging में Golgi का काम होता है. Golgi body, right? Leaderboard is here. Fine. Yes, exactly. So yes, कभी कभी बच्चे रिजल्ट ना थोड़ा लेट शो होता है, so that might be the problem. But आप क्वेश्चन स्किप मत करो, you keep on answering the questions. Fine. Okay. Yes. हेमलता बच्चे आप जाओ www.mentee.com जल्दी से फटाफट जाके टाइप करो. ठीक है, आपके पास एक साइट खुलेगी एंड वहां पर आपको एक कोड यूज करना है, दैट इज 926117. यस, एंड यू विल एंटर इनटू द मेंटी. यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, जल्दी फटाफट जाओ. यस, ओके. ईस्ट के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ ईस्ट. Yes, ribosome will not be found where? Inside ER or nuclear membrane, cytoplasm or mitochondria. Yes. And obviously they are talking about the eukaryotic cell here. ठीक है, ये eukaryotic ribosome की बात हो रही है. Why Naisa? What happened? Why you not playing Menchie? Yes. Okay, and the time is up. Oh my God, इतना ज़्यादा confusion. Okay, so बच्चे देखो, हमने अभी पढ़ा था ना, ये मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई थी. Yes, that where the ribosomes are present, they are present on your nuclear membrane, they are present in the cytoplasm. All right. So students, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है. The mentee is wrong. Yes, mitochondria should not be here. ठीक है, it should have been your endoplasmic reticulum. Yes, absolutely. mentee गड़बड़ा गया है, mentee थोड़ा senti हो गया है. So yes, okay. All right. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Fine. Question 4 now. So now I'll show the leaderboard after the fourth question. ठीक है, इसमें तो गड़बड़ हो ही गई थी. Fine students. Yes. Which of the following statement is not related to the endoplasmic reticulum? Yes. कौन सी statement endoplasmic reticulum से related नहीं है? It behaves as transport channel for proteins between nucleus and cytoplasm. It transports material between various regions in cytoplasm. It can be the site of the energy generation. It can be the site of some biochemical activities of the cell. Yes. Okay. Start answering. जल्दी फटाफट. जितनी जल्दी आंसर दोगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. Fine. Okay, all of you. Yes. All right, 10 seconds left now. जल्दी जिसने आंसर नहीं किया फटाफट से आंसर कीजिए. बच्चे कोड इज 926117. हेमलता. Yes, 926117. Yes, absolutely right. Endoplasmic reticulum में एनर्जी नहीं बनती. That happens in your mitochondria. So that was the right answer. चलिए. Okay. And here's the yes. Leaderboard is here. Very nice. All right, students. The next question for you all. That is question number 5. Fine. Chaliye, the question says which of the following is not a function of the vacuole in plants? They store toxic metabolic waste,
they help with the process of cell division, they help to maintain the turgidity, they provide structurally support, structural support provide करते हैं. Okay, Debanjan. Okay, Debanjan. I don't know why it happened, but still you can answer the other questions, student. ठीक है? Okay. Yes. 20 seconds left. Yes, Naisa, you can answer in the chats. But what happened? Why you not able to join the mentee? कुछ problem होगी क्या? Yes, चलिए. 10 seconds, जल्दी फटाफट. All right, all right. And 3, 2, 1. The right answer is that वैक्यूल जो होते हैं बच्चे, वो देखो टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करते हैं, वो टर्जिडिटी भी मेंटेन करते हैं, दे ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बट दे डू नॉट हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में इनका कोई रोल नहीं होता. सो यस, दिस इज द राइट आंसर. लेट्स सी द लीडर बोर्ड नाउ. ओके, यस, फाइन. चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस. Tanishq is on the top in this question. You still have 2 more questions. No, 3 more questions. 6, 7 and 8. अभी भी chance है बच्चों, जल्दी से. Bring some enthusiasm and yes, पलट दो लीडर बोर्ड का एकदम नक्शा पलट दो. चलिए, all right. Which of the following statement is correct for a secretory cell? Secretory cell एक ऐसा सेल जहां पर बहुत ज्यादा सिक्रीशंस होंगी. ठीक है, चलिए, उसके अंदर क्या चीज होने वाली है? गोल्जी अपैरेटस एब्सेंट होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा, या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा, या सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स वहां पर फॉर्म होंगे न्यूक्लियस के अंदर. चलिए बताइए. यस. Now mentee not opening. Try to open it again बच्चे. दोबारा रिफ्रेश करके ओपन करो. Yes, दोबारा लॉग आउट करके ओपन करो. It will. I'm absolutely good बच्चे. I'm absolutely good. I hope you all are also doing great. Okay, fine. 5 seconds left now. And 3, 2, 1. The time is up. And the right answer is your option B. Because students देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन्स बनाता है. ठीक है, और जब हम सिक्रीटरी सेल की बात करते हैं तो वहां पर जो भी सिक्रीशन होगी, जितनी भी सिक्रीशन होती है उनके अंदर प्रोटीनेशियस चीजें प्रेजेंट होती हैं. यस, जो भी सिक्रीशंस होते हैं दे कंटेन योर प्रोटीनेशियस थिंग्स, दैट मीन्स योर प्रोटीन्स ओनली. सो जितने ज्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उतने ज्यादा सिक्रीशन. ठीक है, फाइन. सो सिक्रीटरी सेल विल बी हैविंग मोर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे चकमा खा गए हैं. ठीक है, कंफ्यूज हो गए. एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज इट सिक्रीट्स योर लिपिड्स. लिपिड्स आपके सिक्रीशंस में इतना नहीं होता, बट आगे से याद रखेंगे सिक्रीशंस मीन्स प्रोटीन्स. यस अभिषेक, क्लियर हो गया? ओके. सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स जो होते हैं बच्चे, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन योर न्यूक्लियस फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ये तो यही गलत हो गया था. ठीक है, चलिए. ओके. एंड यस, who's on the top in this question? Fine. And that's Anvesha. Very nice. Chaliye. Next question for you all. Yes. You don't wear mask, so you want me to sit with the mask here now? It's nowhere contagious if I teach you like this. फोन से तो कोरोना नहीं जाएगा ना बच्चे. ठीक है? Sometimes you like really funny things you do now, you people. Okay, the traffic police of the cell. Traffic police of the cell. Endoplasmic reticulum, Golgi body, mitochondria, nucleus.
सो यस स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था बिकॉज आई वांटेड टू कीप इट एज अ क्वेश्चन. अब थोड़ा दिमाग लगाओ. ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रैफिक पुलिस? अब देखो सेल में इसका काम किसका हो सकता है, ठीक है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ट्रैफिक? ट्रैफिक का मतलब ही क्या होता है? लिटरल मीनिंग इंग्लिश वर्ड है ये ट्रैफिक. वहीं से आंसर मिल जाएगा. बहुत सारी हिंट्स दे दिया है मैंने. जल्दी जल्दी फटाफट, 15 सेकेंड्स बचे हैं. यस ऑल ऑफ यू. यस फाइन, वेरी नाइस वेरी नाइस. यस, कंट्रोल व्हाट बच्चे, तन में कंट्रोल व्हाट? यस, ठीक है. सो ट्रैफिक मीन्स द मूवमेंट ऑफ योर व्हीकल इज नोन एज ट्रैफिक, ठीक है. उसी को ट्रैफिक बोलते हैं. सो मूवमेंट किस चीज़ का हो सकता है? मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स. एंड प्रोटीन्स के मूवमेंट को कौन रेगुलेट करता है, कौन चेक करता है? दैट इज योर गोल्जी बॉडी, बिकॉज दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटीन्स. दैट इज व्हाई दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस. फाइन, काफ़ी बच्चों का ये सही है जवाब. वेरी नाइस वेरी नाइस. जिनको नहीं पता था होपफुली नाउ इट्स क्लियर विद यू ऑल. ठीक है, लीडर बोर्ड. यस, वेरी नाइस वेरी नाइस. And leaderboard is here. चलिए. And Rajan Yadav gave this answer at the first. So students, last question है. And करो एंड मरो की सिचुएशन आ गई जल्दी से सबके लिए, ठीक है. Let's see who will be today's champ. Who will win the mentee quiz today? लास्ट क्वेश्चन है ये सबके लिए. जल्दी फटाफट से अपने हैंड्स फोन स्क्रीन पर रखेंगे and answer this question. इनमें से ये बताना है which statement is incorrect. I am reading all of the statements for you. Golgi Apparatus is involved in the formation of the lysosomes. Second is nucleus, mitochondria and plastid have DNA, hence they are able to make their own structural proteins. Then lysosomes are called the suicide bags as they eat up their own cells. Then cytoplasm is also known as protoplasm. Yes, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से. Yes बच्चे, आप चैट में बता दो, ठीक है. I don't know what's the problem with your mentee. आप चैट में आंसर कर दो. Yes, very nice very nice very nice. प्रणव जल्दी अपना क्वेश्चन दोबारा रीड करो क्वेश्चन. एंड यस, द टाइम इज अप. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. बच्चे, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं. मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम. बाकी की सारी स्टेटमेंट सही थी, एग्जैक्टली ट्रू थी ये, ठीक है. चलिए, ऑल राइट. क्या हम प्रोटोप्लाज्म को ही साइटोप्लाज्म कहते हैं? नहीं ना. आई एक्सप्लेन्ड यू द डिफरेंस. Yes, fine. All right, let's just see the leaderboard. And yes, here's the leaderboard, students. Let's see आज का winner कौन है. Who's the winner in the Menchie today? And that is Rajan Yadav. Okay, बच्चे, congratulations, Rajan. Very nice, nicely done. ठीक है. So Mentee तो हो गई है खत्म. And students, if you haven't came on our app yet, अभी तक आप लोगों ने हमारा live learning experience नहीं लिया है GoPrep का, तो जल्दी कीजिए. What are you waiting for? Go on the Google Play and download our app. वहाँ पर इससे भी ज़्यादा फन होता है, इससे भी ज़्यादा मस्ती होती है, इससे भी ज़्यादा सीखने को मिलता है. Alright students, so yes, it's time to end the session now, and if you are willing to enroll in our full term year batch where you will be preparing every subject with only and only Goprep, so yes, you can enroll, and here are the numbers for your support, and the mail ID is also given here. And students, a very big announcement for you all. So there's this chapter, cell structure and function, जिसका mini course होने वाला है, and it is going to be taken by me, your biology mentor Tamsa Tyagi. So yes, last time जो mini course हुआ था, everybody liked it, and I hope अगर किसी को भी इस chapter में problem है, आपको इस chapter को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो just learn it in just 5 days. I am guaranteeing you कि 5 दिन में ये chapter बहुत अच्छे से
समझ आ जाएगा। तो करना क्या है, जाके बस ये मिनी कोर्स को परचेज करना है, विच इज जस्ट फॉर ₹99 एंड दैट्स नॉट मच. So enroll now. What are you waiting for? It's starting from 21st of September, that is the coming Monday. Okay students, meet you all next time. Till then, stay safe and bye bye all of you.